Can you hear me? Okay, good. Thank you. Thank you, Tanvi. Thank you, Lavanya. Okay. So I think we have completed the third chapter as well, is it? And our last chapter, that is ninth chapter. Okay. So this chapter is remaining. And after that, our syllabus will be completed. Okay. So after the completion of syllabus, we'll be revising the things. Okay. We'll be revising the whole syllabus, and I am going to design few tests for you. Okay. So yeah, let's look forward to it. And okay, ठीक है. So let's come to the let's go to that chapter. Okay, so let me just put the page number here so that it will redirect us to the desired page. Okay, so ninth chapter, name is carbon compounds. We know what is carbon. Okay, and what are the compounds that we are going to see. And एक कार्बन कंपाउंड्स नाम का एक कंप्लीटली हमें चैप्टर दिया गया है. ओके, सो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा. किसका सिग्निफिकेंस होगा? कार्बन का सिग्निफिकेंस होगा, क्योंकि एक चैप्टर एक एलिमेंट के लिए अगर असाइन किया गया है, so that means this component or this element must be holding some place among others. So that's why one complete chapter is designated to it. Okay, so see, what are the types of compounds? Objects in everyday use, such as foodstuff, fibers, paper, medicines, wood, fuels, are made of various compounds, which constituent elements are common in these compounds. Okay, so अभी कंपाउंड्स क्या होता है, ये हमें पता है. अभी फूड स्टफ हुआ, या फिर फाइबर, या फिर पेपर, या फिर मेडिसिन, या फिर वुड, ये जो चीजें हैं, ये किन किन कंपाउंड से मिलती है. सो इनमें अलग अलग चीजें हो सकती है, बराबर. लेकिन एक चीज इन सब में कॉमन आपको दिखेगी, वो है कार्बन. बराबर, कार्बन. फूड स्टफ, फूड स्टफ में भी कार्बन होता है. फूड स्टफ में कार्बन कहाँ से आता है? फोटोसिंथेसिस की मदद से जो ट्रीज या फिर प्लांट्स जिससे कि हमें हमारा फूड मिलता है, वो कार्बन ऑब्जर्व करते हैं, एंड दैट कार्बन वी कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ आवर फूड स्टफ. ओके, आफ्टर दैट वुड. वुड में भी अगर आप देखोगे, वुड को अगर जला दोगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस भी चला जाता है. एंड द remaining that we call it as coal. Coal is nothing but the form of carbon. Okay, or the ash is also form of carbon. After that, fuel. Okay, so इन सब चीजों में कहने की बात यह है कि इन सब चीजों में, इन सब कंपाउंड्स में एक चीज कॉमन है, एंड दैट इज कार्बन. ओके, सो इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स we have seen that organic and inorganic compounds are the two important types of compounds. Except materials fabricated from metal and glass, soil, several other materials from foodstuff to fuels are made up of organic compounds. The essential element in all organic compounds is carbon. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, इसमें हमें नाम से ही इन दोनों में डिफरेंस पता चलता है. बराबर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, यू नो द डिफरेंस. ऑर्गेनिक यानी कि क्या, कि ऐसी कोई भी चीज ऑर्गेनिक, वी कैन से लाइक that can be compose. Okay, that can decompose. ऑर्गेनिक यानी, और इनऑर्गेनिक मतलब कि वो कंपोज नहीं हो सकती, या फिर that cannot be like mix in soil. So organic and inorganic are these two types. So except materials fabricated from metal and glass, तो मेटल से लेके, या फिर मेटल से जो चीजें बनी हुई है, या फिर ग्लास से जो चीजें बनी हुई है, या फिर सॉइल से जो चीजें बनी हुई है, इन चीजों को छोड़ के जो सारी चीजें हैं वो ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी है. ओके, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी उनका जो मेन एलिमेंट है दैट इज कार्बन. अबाउट 200 years back it was believed that organic compounds are obtained directly or indirectly from the organism. Okay, so this was the definition 2 years back. However, after synthesis of organic compound,
urea from an inorganic compound in the laboratory, the organic compounds received a new identity as carbon compounds. All the compounds having carbon is constituent element are called as organic compounds. The compounds carbon dioxide, carbon monoxide, carbide salts, carbonate salts, and bicarbonate salts are exception. They are inorganic compounds of carbon. ठीक है. तो एक यूरिया इज अ थिंग that can be or that is obtained or that is मतलब जो हमें मिल सकता है ऑर्गेनिज्म से भी मिलता है एंड इनऑर्गेनिक वेज से भी हमें यूरिया जो है वो पाया जा सकता है. तो जब से ये खोज हुई या फिर जो जब से ये फाइंडिंग हुई तब से क्या माना जाने लगा कि हम इस तरह से नहीं डिफाइन कर सकते कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सिर्फ ऑर्गेनिज्म से ही मिल सकते हैं. दैट इज नॉट नेसेसरी. ओके. सो ये जो बाकी सारी चीजें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड सॉल्ट्स, कार्बोनेट सॉल्ट्स या फिर बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स, these are exceptions. They are in inorganic compound of carbons. Okay. So इनमें भी कार्बन है तो ये भी कार्बन के ही कंपाउंड है, ये हम कह सकते हैं. नो बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड्स. तो अभी कार्बन कंपाउंड यानी कि क्या? कंपाउंड यानी कि दो या फिर दो से ज्यादा जब एलिमेंट्स मिलते हैं तो उनसे एक नया एलिमेंट बनता है या फिर एक नई चीज बनती है जिसे हम कंपाउंड कहते हैं. बराबर. अभी ये जो दो चीजें मिल रही है तो इनका कुछ ना कुछ आपस में केमिकल रिएक्शन होता है. और केमिकल रिएक्शन के लिए क्या नेसेसरी है? केमिकल रिएक्शंस के लिए नेसेसरी है कि या तो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लिए जाए या फिर इलेक्ट्रॉन्स दिए जाए या फिर इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे जाए. ओके. सो chemical reaction means what? Chemical reactions means either the atom gives electrons, it takes electrons, it receives electrons or it shares electrons. Okay. So ये जो शेयरिंग हुई या फिर ये जो गिविंग प्रोसेस है या फिर वो टेकिंग प्रोसेस है, यहाँ पे क्या मायने रखता है कि एक बॉन्ड बनता है. किस तरह से? देखिए न्यूक्लियस जो है हमारा, फॉर एग्जांपल दिस इज एन एटम. ओके. सो इस एटम में यहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं. बराबर. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस. सो इनको जो बांध के रखा है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहां से जा नहीं सकता. ओके. इस शेल से जा नहीं सकता. जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो वो बात अलग रहेगी. लेकिन यहाँ पे तो एक ही शेल है और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है. दैट मीन्स ये एक क्या बोल सकते हैं हम इसे? इनएक्टिव एलिमेंट है. ओके. जो भी हम एलिमेंट देख रहे हैं इसकी आउटर ऑर्बिट में या फिर आउटर कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें इलेक्ट्रॉन लिया या फिर दिया नहीं जा सकता. ओके. या फिर शेयर भी नहीं हो सकता. तो देखो, तो ये इलेक्ट्रॉन जो जिस फोर्स से यहाँ पे बंधे हुए हैं, ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग. ओके. ये बॉन्ड एक पर्टिकुलर बॉन्ड से बंधे हुए रहते हैं with the nucleus and that's why they cannot escape from their orbits. Okay. So ये जो bonds है इन bonds के अलग अलग टाइप्स रह सकते हैं. अब उन्हीं bonds के टाइप्स के बारे में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं इस चैप्टर में. तो you have learned about the ionic compounds in the previous chapter. तो ionic compounds यानी क्या होता है कि ionic compounds यानी फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ NaCl. NaCl में क्या होता है कि जो सोडियम है हमारा वो एक इलेक्ट्रॉन देता है और खुद का पॉजिटिव आयन फॉर्म कर लेता है. बराबर. Na+ बन जाता है. सिमिलरली क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है एंड दैट becomes a negative ion or what we can say anion for that element. Okay. So that is nothing but the ionic compound. NaCl is ionic compound. You have also seen that ionic compounds have high melting and boiling points. They conduct electricity in the molten and dissolved state. Okay. So see, ionic compounds का जो बॉइलिंग पॉइंट है या फिर मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होते हैं एंड वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में काबिल होते हैं या फिर दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन और डिसॉल्व स्टेट. You have also seen that these properties of ionic compounds are explained on the basis of ionic bonds in them.
The table 9.1 shows melting and boiling points of few carbon compounds. Are these values larger or lower as compared to the ionic compounds? So see, यहाँ पे मीथेन का जो मेल्टिंग पॉइंट दिया है दैट इज माइनस वन -183 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो -162 डिग्री है। ठीक है, ये कम लग रहा है हमको, 162 इज लेस देन 183, बट एक्चुअली दिस इज नॉट द केस। ओके, सी, यस, ओके, ठीक है। सो इथेनॉल का देखो, यहाँ पे इथेनॉल का भी 177 है, -177 मेल्टिंग पॉइंट है, एंड 78 जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है। सिमिलरली फॉर क्लोरोफॉर्म इट इज -64 and 61. For acetic acid it is 17 and 118. Okay, so see what are the observations? ये जो हमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिए हैं, ये दिए हैं कार्बन कंपाउंड्स के। सो जनरली melting and boiling points of carbon compounds are found to be lower than 300 degrees Celsius. From this we understood that the intermolecular attractive forces are weak in carbon compounds. तो अगर हम इनकी कंपैरिजन करेंगे किसके साथ में, आयोनिक कंपाउंड्स के साथ में कार्बन कंपाउंड्स की अगर हम कंपैरिजन करते हैं, सो वी विल फाइंड दैट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज लोअर देन दैट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ओके, तो ये हमारा एक कंक्लूजन हो सकता है। आफ्टर दैट इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होने का मतलब, ओके, व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो, because the intermolecular attractive force is weak in these carbon compounds. अभी ये intermolecular attractive force क्या होता है? See, अगर for example if this is one atom, okay, and this is another atom, this is another atom, so इस तरह से कई सारे एटम्स बनके एक साथ जुड़ के एक कंपाउंड बनता है, कोई भी एक एलिमेंट बनता है। ओके, सो इतने सारे एटम्स जब मतलब एक साथ जुड़ते हैं तो कोई चीज बनती है, तो इनके बीच में जो फोर्स रहता है, सी दिस एटम इज अटैच टू दिस, also this to this, okay, and to this. So ये एक एटम जो है वो बाकी के 4 एटम से जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा किस वजह से है? देयर इज अ सर्टन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स इन बिटवीन देम। ओके, इनमें एक ऐसा फोर्स है जो कि इन दोनों को जोड़े रखता है। अभी अगर ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग रहा, अगर ये स्ट्रॉन्ग है, तो हम इन एटम्स को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। अगर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर फोर्स वीक है तो क्या होगा, ये इजीली सेपरेट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, let us take example of chalk and योर पेंसिल। ओके, सो पेंसिल, एक तरफ पेंसिल लीजिए आप, एक तरफ चौक लीजिए। सो चौक को अगर हम थोड़ा सा प्रेशर लेके मतलब ऐसे दबाए हाथ में लेके, तो वो क्रश हो जाएगा। ओके, उसका पाउडर बन जाएगा। लेकिन अगर आप पेंसिल की बात करोगे या फिर कोई स्टील का ऑब्जेक्ट या फिर कोई आयरन का ऑब्जेक्ट आप अगर इस तरह से मसलने की कोशिश करोगे तो आपको ही चोट लग जाएगी। इवन अ स्मॉल नेल, अगर एक छोटा सा कीला भी अगर आप उसको मोड़ने की कोशिश करोगे तो वो टूटेगा नहीं। ओके, और अगर उस क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स इन चीजों का, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है किन चीजों का, चौक का। अभी चौक में चौक विल नॉट बी द परफेक्ट एग्जांपल विल बी लाइक आवर सोडियम क्लोराइड, दॅट इज सॉल्ट, मीठ ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो। तर आता म्हणजे आता जे मिठाचे पॅकेट्स येतात बरोबर, त्यांच्यामध्ये असं एकदम फाईन मीठ असतं, म्हणजे एकदम फाईन सॉल्ट असतं। पण अगोदर जे म्हणजे यायचे 5-10 वर्ष अगोदर जे मिठाचे पॅकेट्स यायचे, टाटा मीठ म्हणजे टाटा सॉल्ट म्हणून काहीतरी एक असायचं, त्याच्यामध्ये असे एक मिठाचे खडे यायचे बघा। तर ते मिठाचे खडे ऍक्च्युअल मध्ये ते एक म्हणजे सोडियम क्लोराईडचा एक आपण त्याला स्पेअर समजू शकतो, पण ते लवकर इझिली ब्रोक होणार ना, कारण की त्यांच्यामध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्स नाहीये, जास्त नाहीये। ओके, तर इंटरमॉलिक्युलर फोर्स जर जास्त असेल तर तो जो एलिमेंट आहे तो लवकर डिझॉल्व्ह होणार नाही किंवा तो मेल्ट होणार नाही। फॉर एक्झाम्पल आता वॉटर जर आपण घेतलं, वॉटरमध्ये काय आहे, हायड्रोजन आहे आणि ऑक्सिजन आहे, H2O।
वॉटरला जर आपण गरम करायला ठेवलं आपण गॅसवरती किंवा शेगडीवरती कुठेही, तर लवकरच म्हणजे 100 डिग्री सेल्सियसला ज्यावेळेस टेम्परेचर पहुंचल त्यावेळेस काय होईल, तब क्या होगा, तब वो बॉईल होना शुरू हो जाएगा एंड उसका स्टीम बनना शुरू हो जाएगा, बराबर। मतलब कि उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो वीक है, इसकी वजह से उनकी जो बॉन्डिंग है, जो एटम्स है वो सेपरेट हो रहे हैं। उसी जगह पे अगर आप कोई आयरन का कुछ चीज अगर उबालने के लिए रख दो कढ़ाई में, तो उसको बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा, फिर भी वो उसका स्टीम नहीं बनेगा, वो मेल्ट भी हो जाएगा तो भी उसका स्टीम नहीं बनेगा, बराबर। सो इसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। कुछ 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 चीजों में वो ज्यादा होता है, कुछ कुछ चीजों में वो कम होता है। तो कार्बन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होता है, बहुत वीक होता है। सो ये वीक होता है, इसकी वजह से ही इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है एज कंपेयर टू द आयोनिक कंपाउंड्स। ओके, so this is the intermolecular force. Now let's see the next paragraph. In the previous standard on testing the electrical conductivity of carbon compounds, glucose and urea, you have observed that they are not electrical conductors. Generally, most of the carbon compounds are found to be bad conductors of electricity. From it, we understand that structures of most of the carbon compounds lack ionic bonds. It means that the chemical bonds in carbon compounds do not produce ions. Okay, so अभी कार्बन जो है, कार्बन इज अ इंसुलेटर, ओके, इट इज नॉन मेटल, सो ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक रीजन या फिर एक सवाल जो है वो हमारे जहन में आना चाहिए कि वाई कार्बन कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं कर सकता है। सो सी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए क्या होना चाहिए आपको पता है। ओके, सी लेट अस सपोज इफ दीज आर थ्री एटम्स, ये थ्री एटम्स है, तो अगर मुझे यहां से इलेक्ट्रिसिटी यहां तक पहुंचानी है तो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। यहां से इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एक इलेक्ट्रॉन आएगा जो कि यहाँ पे बैठ जाएगा, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठेगा और वो वहां चला जाएगा। ओके, एंड अगेन सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो इस इलेक्ट्रॉन को उठ के फिर से यहाँ पे जाना पड़ता है, एंड एट लास्ट we get a free electron or we call it as a electricity. Okay, so this is how the electricity flows. लेकिन मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड जो है, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स के एटम्स जो है उनके आउटर शेल्स वो फुलफिल होते हैं, मतलब कि आइदर दे हैव टू इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल, मतलब कि उनका ड्यूप्लेट या फिर जो ऑक्टेट जिसे हम कहते हैं वो कंप्लीट रहता है। तो वो कंप्लीट हो जाने के बाद में क्या है कि वो एलिमेंट जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, दैट डज नॉट टेक प्लेस इन कंडक्शन। ओके, ये हमें पता होना चाहिए। सो इस वजह से कार्बन के जो कंपाउंड्स है वो ज्यादातर इलेक्ट्रिकली, क्या कह सकते हैं हम, they are bad conductors of electricity. Okay, they cannot conduct electricity. Why they cannot conduct electricity? Because there is not enough space or there is not enough electrons to circulate the electricity. Electricity यानी क्या, electricity यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं होंगे, फ्लो होने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं हमारे पास, तो कहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, बराबर। सो इट इज लाइक दैट। Now, what is meant by chemical bond? What is the number of chemical bonds that an atom of an element form called? What are the two important types of chemical bonds? So ये इन सारे सवालों का जवाब हमें इन पैराग्राफ्स में नीचे मिलने वाला है। See, in the previous standards, you have learned about the relationship between electronic configuration and valency of an element, and also about the ionic and covalent bonds. Let us see at the background of electronic configuration of carbon and covalent bonds formed. So see, carbon का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है। C6, C6 यानी क्या, what is 6, what is 6 here, can anyone tell me? कौन बता सकता है मुझे कि यहाँ पे C6 लिखा है तो 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मीनिंग क्या है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूं। 6 is what?
It is atomic number. Very good, Bhairavi. Okay. So what is the significance of atomic number? म्हणजे atomic number म्हणजे एक्झॅक्टली काय? atomic number म्हणजे एक्झॅक्टली काय? 6 इथे काय डिनोट करतं? सगळ्यांनी आन्सर द्यायचंय. दीप, अथर्व, तन्वी, अपर्णा, समृद्धी, अर्षद. Number of electrons. Very good. Yes. Atomic number means what? Number of electrons. Atomic number means presence of proton and neutron in it. No, no, I think Tanvi, you are going little wrong. Okay, atomic mass number means number of protons and neutrons, is it? And atomic number means number of protons or number of electrons, either of them, not both of them. Okay, एक तो या डोंट बी सॉरी, या थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इट्स ओके. तो एटॉमिक नंबर मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अभी ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम ही होते हैं, इसके लिए हम सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही कहेंगे. ठीक है. सो कार्बन का जो एक प्योर एटम जिसे हम कहते हैं, जो बेसिक एटम है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एंड 6 प्रोटॉन्स रहते हैं. तो अभी कार्बन का जो अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा तो बाकी का जो सारा चैप्टर है वो सारा चैप्टर आपको समझ में आने लग जाएगा. ओके. सो पहले तो कार्बन का हम एक डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. सी, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन. ठीक है. दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एंड these are the two shells of carbon. This is the first shell and this is the second shell. Okay. सो यहां पे पकड़ के चलिए कि कितने प्रोटॉन्स रहेंगे? 4 प्रोटॉन्स, सॉरी 4 नहीं, 6 प्रोटॉन्स रहेंगे. देयर विल बी 6 प्रोटॉन्स इन इट. मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ करता हूं जिससे कि आपको दिखाई देने लग जाए. ओके. सो 6 प्रोटॉन्स आर देयर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. अभी रही बात इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स है कितने? 6 ही इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए. तो 6 में से पहली जो शेल है या फिर ऑर्बिट है उसमें कितने गए? 2. वेरी गुड दीपक, वेरी गुड दीप. एंड इन द नेक्स्ट शेल हाउ मेनी विल बी देयर? 1, 2, 3 and 4. Very good, everyone is answering that 4 electrons should be there. Now this is the basic structure of कार्बन एटम. तो अभी कार्बन एटम का जो उसे क्या करना है? सी, उसे ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, या फिर जो आउटर शेल है, कोई भी एलिमेंट पकड़ लो, उसकी जो टेंडेंसी होती है वो टेंडेंसी कैसी होती है? टू कंप्लीट, या फिर उसकी जो आउटर शेल है उसे उसे फुलफिल करना होता है. ओके. सो मुझे बताइए कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड फॉर कार्बन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट? ऑब्वियसली 4. 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी उसके पास है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर और मिल जाए तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा. तो ये जो कार्बन कंपाउंड्स जो पूरा चैप्टर है ना, वो इसी सिलसिले में है कि किस तरह से कार्बन का जो एक एटम है बाकी के कंपाउंड्स के साथ में केमिकल बॉन्डिंग करता है एंड हाउ इट कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट. ओके. तो इस पे ही पूरा चैप्टर है. जस्ट स्टूडेंट्स गिव मी 20 seconds. I'll be right back. Okay. Sorry for the interruption. Okay. I'll be just back. ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. ठीक है. तो हम कहां पे थे कि इसे इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है या फिर आउटर शेल जो है वो कंप्लीट करनी है. नाउ सी, अभी एक इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है देखते हैं. तो अगर आप ये टेबल ऑब्जर्व करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल आर 4, वी नो दैट, एंड नियर बाय नोबल गैस एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो इसके नियरेस्ट जो है
इसके नियरेस्ट नोबल गैस मीन्स व्हाट, केमिकली इनएक्टिव एलिमेंट्स. सो हेलियम इज देयर, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स पहली कक्षा में होते हैं. सो देर इज no participation of this element in any of the chemical reaction. And the next one is, after carbon there is noble gas called neon, Ne. Okay, neon is there. So neon का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो देख लीजिए, 2 8, यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है. तो ये क्या होगा, एक स्टेबल एटम बन जाएगा. Now, you have seen that driving force behind the formation of bond by an atom is to attain the stable electronic configuration of the nearby noble gas and obtain stability. As the valence shell of carbon contains 4 electrons, there can be many alternative routes to attain a noble gas configuration. तो अभी क्या कहा है यहाँ पे, there can be many alternative routes to attain noble gas configuration. तो कार्बन को क्या करना है, किसी भी रास्ते से जाके उसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो कहते हैं हम, या फिर उसे क्या बनना है, स्टेबल बनना है. सो फर्स्ट वे यहां पे दिया गया है, टू अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस हेलियम. देखो अभी उसे क्या करना है कि हेलियम का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है. अगर आप देखोगे यहाँ पे तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के, और हेलियम की तो एक ही कक्षा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है. अभी कार्बन क्या करना चाहता है, हेलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑब्टेन करना चाहता है, अटेन करना चाहता है. तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे ऑब्वियसली 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे. ओके, इन दिस मेथड द नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यूरिंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा. कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा. Therefore, to lose the next electron, more energy is required, which makes the task more difficult. Moreover, the C4 plus cation that would ultimately form in this process becomes unstable in spite of its noble gas configuration. Before, it has a small size and high net charge. Therefore, carbon does not take this route to attain the noble gas configuration. तो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर उसे हेलियम का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना है तो प्रॉब्लम क्या है. सी, अभी उसे क्या करना है, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना है. ये पहली बात आप समझ लो. तो ठीक है, अभी मुझे बताओ कि उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं. हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन, 6 प्रोटॉन्स. वेरी गुड. चलो अभी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, बराबर. तो 6 में से उसे लूज कितने करने हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कार्बन वांट्स टू लूज, 4 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर. चलो ठीक है, तो अभी पहला इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल उसने लूज कर दिया, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे. लेकिन प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 ही है. सी, दिस इज प्रोटॉन्स एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन्स. सी, 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन गया, 5 इलेक्ट्रॉन रहे, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, 6 ही है. फिर से 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बचे, फिर भी 6 ही बचे. तो अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स है और 6 प्रोटॉन्स है, तो किसका फोर्स ज्यादा रहेगा, किसका फोर्स ज्यादा रहेगा, ऑब्वियसली प्रोटॉन्स का रहेगा. प्रोटॉन पे चार्ज ज्यादा है तो प्रोटॉन का फोर्स ज्यादा रहेगा ना. प्रोटॉन्स ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, बराबर. प्रोटॉन्स विल बी अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड इनका फोर्स ज्यादा है. अभी समझ लो इसे, एक आप एक गेम की तरह पकड़ लो कि आप, आपने रस्सी खींच खेला होगा, बराबर. रस्सी खींच होता है ना, यहाँ पे एक टीम रहती है और यहाँ पे एक टीम रहती है, बराबर. सो यहाँ पे छह छह स्टूडेंट्स है, सबकी फॉर एग्जाम्पल वी आर कंसिडरिंग दैट एवरीवन इज हैविंग इक्वल स्ट्रेंथ, सबकी स्ट्रेंथ सेम ही है, अभी कंसिडर कर रहे हैं. यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स है, यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स है. तो इन 6 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स चले गए, तो कितने बचे, यहाँ पे 4 बचे, यहाँ पे कितने हैं, 6 है. तो कौन किसको खींचेगा, ये इनको खींचेंगे. तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, बराबर. दे हैव टू पुट मोर एफर्ट्स, बट स्टिल दे विल नॉट बी बीट देम. ओके, ये जो 6 लोग हैं इनको ये 4 लोग हरा नहीं पाएंगे. अभी फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि और एक यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया. अभी देखो, अभी भी
मतलब इनका फोर्स तो अभी और ज्यादा बढ़ जाएगा, दुगना ही फोर्स है। ओके, सो ये दुगने फोर्स से इन तीनों को खींच रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इनका जो है वो फोर्स ज्यादा हो गया। अभी भूल जाओ रस्सी खींच के बारे में, ये रस्सी खींच के बारे में भूल जाओ। तो ये जो 6 प्रोटॉन्स है ये कहाँ पे है, न्यूक्लियस में है। एंड जो रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को बहुत ही ज्यादा फोर्स से खींच रहे हैं। कहाँ पे खींच रहे हैं, अंदर की ओर खींच रहे हैं, बराबर। दे आर पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स सेंटर। और आपको तो पता है, अभी कोई जाके उन इलेक्ट्रॉन्स को वहां से निकालता नहीं है, दे गोज ऑटोमेटिकली, वो ऑटोमेटिकली जाते हैं। वाई क्यों जाते हैं वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनको उनकी स्टेबल स्टेट को जो है वो अचीव करना होता है, बराबर। लेकिन इतना ज्यादा फोर्स होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन्स या फिर चौथा इलेक्ट्रॉन्स है, वो जा नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स है, वो ऑटोमेटिकली जाने के लिए काबिल नहीं है। ठीक है, सो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन लूज कर ही नहीं सकता। ओके, कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, क्यों नहीं लूज कर सकता, क्योंकि फोर्सेस इम्बैलेंस हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव फोर्स ऑफ प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, वो दैट विल पुल। ओके, दैट विल नॉट अलाउ द इलेक्ट्रॉन्स टू गो। समझ रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले तो फोर्स सेम ही था ना, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा चलेगा, दूसरा गया दैट इज ऑल्सो ठीक है। लेकिन तीसरे इलेक्ट्रॉन को, या फिर मोस्टली दूसरे इलेक्ट्रॉन को ही उसका जो न्यूक्लियस है वो जाने नहीं देगा। तो इसकी वजह से पहली बात तो ये कि 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो नहीं सकते कार्बन से। यदि मान लीजिए कि 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो भी गए, तो क्या बनेगा, C4+ का एक कैटायन बनेगा, मतलब कि 4 का पॉजिटिव चार्ज रहेगा कार्बन पे। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, दैट विल दैट विल मेक दिस एटम टू बी अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल, 2 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, ठीक है। सो दैट इज क्वाइट अ इम्बैलेंस, बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो जाएगा, सो दैट एटम विल बिकम अनस्टेबल। तो अभी अगर हमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, और उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की वजह से अगर हमारा एटम अनस्टेबल बनता है, सो क्या फायदा उस एटम लूज करने का, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का, बराबर ना। सी फॉर एग्जाम्पल कि हम ऐसी कोई चीज कर रहे हैं कि हमें कुछ चीज मिल जाए, लेकिन वो चीज करने से हमें वी आर लूजिंग द थिंग, सो उसमें फायदा नहीं है ना। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए ही 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की वजह से अगर वो एटम अनस्टेबल हो रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो दैट्स वाई कार्बन एटम डज नॉट टेक दिस रूट। समझ रहे हो, कार्बन एटम डज नॉट टेक दिस रूट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट रूट, नेक्स्ट रूट इज to attain the stable configuration of noble gas neon by accepting one by one as the 4 electrons in the valence shell. Okay, वन बाय वन क्या करना पड़ेगा उससे। अभी देखो, हमने हीलियम का तो कॉन्फ़िगरेशन रिजेक्ट कर दिया, नाउ व्हाट विच कॉन्फ़िगरेशन इज रिमेनिंग, नियॉन का। अभी हमारे कार्बन को नियॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अटेंड करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना पड़ेगा, किसी और एटम से 4 इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ेगा। अगेन सेम प्रॉब्लम विल बी देयर, सेम प्रॉब्लम यानी कि क्या, देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल, अभी इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स फिर से ले रहा है, मतलब उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बनेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। लेकिन प्रोटॉन्स कितने हैं, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर, प्रोटॉन्स आर 6 प्रोटॉन्स आर देयर। सो 6 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो किसका फोर्स ज्यादा रहेगा, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स ज्यादा रहेगा या फिर प्रोटॉन्स का फोर्स ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स ज्यादा रहेगा, इज इट, इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स ज्यादा रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, उसका जो न्यूक्लियस है, उस एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल बन जाएगा। समझ रहे हो, अनस्टेबल बन जाएगा। सो इस वजह से क्या होता है, हम 4 इलेक्ट्रॉन्स ले भी नहीं सकते, दे भी नहीं सकते और ले भी नहीं सकते, मतलब दोनों चीजें जो है वो इनवैलिड है ना। मैं ये जस्ट पैराग्राफ रीड करता हूं। इन दिस मेथड द नेट नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग while accepting every new electron, therefore more energy is required
for accepting the next electron by overcoming the increasing repulsive force, making the task more and more difficult. Moreover, C4 minus anion ultimately formed would be unstable in spite of its noble gas configuration, as it would have a small size with high net charge, making it difficult for the nuclear charge plus 6 to hold 10 electrons around it. Therefore, carbon atom does not take this route to attain the noble gas configuration. यही मैंने आपको बताया कि जो 6 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़े रखना, क्योंकि इनका फोर्स ज्यादा है ना. So that's why that atom will be unstable. So this way is also not suitable for our purpose, जो कि है noble gas configuration attain करना. Now let us see what is the third option we have left. To attain the configuration of neon by sharing 4 electrons of valence shell with 4 valence electrons of other atoms. In this method, two atoms share valence electrons with each other. Valence shell of both the atoms overlap and accommodate the shared electrons. As a result, both the atoms attain a noble gas configuration without generating any net charge on them, which means that atoms remain electrically neutral. Due to these factors, atoms attain stability. Therefore, carbon atom adopt the route to attain noble gas configuration. Which route? Sharing of electrons. Which route? Sharing of 4 electrons of valence shell. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे कार्बन का एटम है जिसमें कि 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है. एक दूसरा कार्बन का एटम है जिसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर शेल में है. तो ये क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस इलेक्ट्रॉन के साथ, इस एटम के साथ में. तो इसके कितने बने, 8 इलेक्ट्रॉन्स बने इन द लास्ट शेल बिकॉज ऑफ शेयरिंग दिस. ठीक है. सिमिलरली ये भी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके साथ शेयर करेगा. So they both will be having noble gas configuration and number of protons and number of electrons will remain in that compound. Okay, so इस तरह से क्या होगा, chemical imbalance भी नहीं होगा and that atom, both the atoms will remain electrically neutral. Electrically neutral means what? Number of protons is equals to number of electrons अगर है, so then we say that the atom is electrically neutral, and normally every atom is electrically neutral. Okay, every atom is electrically neutral. उसमें जितने number of protons रहते हैं उतने ही number of electrons भी रहते हैं. The chemical bond formed by sharing of 2 valence electrons between the two atoms is called covalent bond. अभी इसे क्या कहेंगे हम, covalent bond में कहेंगे. The covalent bond is represented clearly by drawing an electron dot structure. In this method, a circle is drawn around the atomic symbol and each of the valence electron is indicated by a dot or a cross. The covalent bond formed between the atoms is indicated by showing the circles around the atomic symbols crossing each other. The shared electrons are shown in the overlapping regions of the two circles by dot or cross. The electron dot structure is also drawn without showing the circle. One pair of shared electrons constitute one covalent bond. A covalent bond is also represented by a small line joining the symbols of the two atoms. The line structure is also called स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. तो मैंने अभी इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ा, तो इसमें क्या समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आया. फॉर एग्जांपल, ठीक है. तो अभी इन 3 इमेजेस में जो हमें दिखाया गया है वही इस कंप्लीट पैराग्राफ में दिया गया है. ओके, अगर ये 3 इमेजेस समझ में आ जाए तो ये पैराग्राफ समझ में आ गया है, ऐसा पकड़ के चल लो. तो एक हाइड्रोजन का यहाँ पे एटम दिया है, हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है, और ये जो एक दिख रहा है ना ब्लू, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इसको जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियरली दिखाई दे. ओके, सी यहाँ पे जो मैंने ग्रीन किया है दैट इज इट्स न्यूक्लियस एंड दैट इज इट्स एट इलेक्ट्रॉन. ओके, मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे दो में देख के. तो ये
न्यूक्लियस है जिसमें कि प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये दो हाइड्रोजन के एटम हैं, वो क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे विथ ईच अदर। देखो, इसने इसके साथ में शेयर किया, इसने इसके साथ में शेयर किया, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हुए हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। सो दैट इज नथिंग बट अ कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब बोथ आर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। व्हाई दे आर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन? बिकॉज दे वांट two electrons in their outermost shell. They both want two electron in their outermost shell, and that's why they are sharing one electron with each other, so that they both are getting two electrons in their outer shell. Okay, ये हुआ एक टाइप उसको उनको रिप्रेजेंट करने का। दिस इज अनदर टाइप। एक एच लिखा है यहाँ पे, एक दूसरा एच लिखा है, और यहाँ पे दो एटम्स, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, जिससे कि हम बता रहे हैं कि ये जो दोनों एलिमेंट्स है, दे आर शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन विच ईच अदर। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड क्यों है, ये सिंगल बॉन्ड क्यों कहा जाएगा? क्योंकि यहाँ पे एक ही पेयर है, सी, एक ही पेयर है, जिसकी वजह से that is a single pair. This is indication of a pair. How many pairs are there being shared? Okay, so this is the indication. Now let me just zoom it out and तो देखो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मैंने आपको बताया, यही इस पैराग्राफ में भी दिया है। नाउ O2 मॉलिक्यूल, O2 यानी कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से फॉर्म होता है वो हम देखते हैं। तो इस पैराग्राफ में जो दिया है वही इस इमेज में भी दिया है, कि एक ऑक्सीजन का एटम पकड़ लीजिए। एक ऑक्सीजन के एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? तो 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, बराबर। देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ऑक्सीजन। नाउ ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो रहेगा 2 6, यानी कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसे उसका ऑक्टेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, बराबर। दो इलेक्ट्रॉन्स की अगर दो इलेक्ट्रॉन्स अगर उसे मिल जाए तो क्या होगा कि उसको उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अभी अगर ये दो एटम्स पकड़ लो हम, ये यह एक एटम है और ये दूसरा एटम है, इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? दो इलेक्ट्रॉन्स अगर ये इसके साथ में शेयर करता है, सी, इफ दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड विद दिस, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। एंड सिमिलरली इफ दिस शेयर्स दीज टू इलेक्ट्रॉन्स विद दिस, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों क्या करेंगे? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेंगे। तो यहां पे उन्हें क्या करना पड़ रहा है कि दो दो एटम्स शेयर करने पड़ रहे हैं। हाइड्रोजन को क्या करना पड़ा था? एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करना पड़ा था। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच, हर एक एटम को 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, मतलब ईच ऑफ देम इज शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो 2 + 2 बिकम्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। देयर आर 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर डॉट के स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे दिखाना चाहे तो इस तरह से 1 2 3 4 4 डॉट्स दिखाई देंगे। तो ये जो 4 डॉट्स है, ये 4 डॉट्स दोनों के लिए है। कैसे? देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो कितने हुए? 4 और 4 8, मतलब कि इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो गया। सिमिलरली ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके भी है, तो ये दो बने 4, 4 और 4 8, तो मतलब इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जा रहे हैं। तो इसको भी जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे कितने पेयर्स हुए? 2 पेयर्स है, 2 पेयर्स है ना, बराबर। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, या फिर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं बाय ईच एटम। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड आर 4 एंड 2 पेयर्स आर देयर, सो डबल बॉन्ड इज देयर। सी, डबल बॉन्ड इज देयर, 2 पेयर्स यानी कि 2 बॉन्ड्स। अभी नियॉन की अगर हम बात करें, इट इज नॉट नियॉन, सॉरी, इट इज अ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? तो 2 5 है, 2 और 5। उसको क्या चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है? 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो ये क्या करेगा? ये दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ में 3 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। खुद के 3 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम को यूज करने के लिए देगा, तो उसके पास पहले से 5 थे, और इस नाइट्रोजन के एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो 5 और 3 मिलके हुए कितने? 8 हुए। देखो, ये जो नाइट्रोजन का एटम है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके खुद के हैं 5। ओके,
और इसने भी इसके 3 इसे दे दिए यूज करने के लिए कुछ देर के लिए, तो इसके पास कितने बने, 8 इलेक्ट्रॉन्स बने। तो इसका जो मोटो था या फिर गोल था वो कंप्लीट हो गया, उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, उसका काम खत्म हो गया। तो अभी इसने भी, इस एटम ने भी क्या किया, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एटम के साथ में शेयर किए, एंड दिस एटम ऑल्सो अचीव्ड द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पे क्या हो रहा है, 3 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं बाय ईच एटम। सो कितने पेयर बन रहे हैं, हाउ मेनी पेयर्स आर देयर, 1 2 3 पेयर्स आर देयर। मैं पेयर की बात कर रहा हूं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। आप इस पेयर को कंसिडर मत कीजिएगा, ओके। दिस पेयर इज नॉट ऑफ आवर यूज। विच पेयर इज ऑफ आवर यूज, द पेयर दैट इज बीइंग शेयर्ड, ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं उनकी पेयर ही हमें काम आएगी। सो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये हमने साइड में लिख दिए, एक नाइट्रोजन के लिए n लिखा, ट्रिपल बॉन्ड लिखा, ट्रिपल बॉन्ड यानी कि क्या, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं एक दूसरे में, एंड अगेन द 2 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर हियर। तो 2 यहाँ पे क्यों लिखा हमने, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल थे 5, 5 में से 3 कहां पे गए, शेयरिंग में गए, तो बचे कितने, 2 बचे, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिए। और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, इसके लिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हमने ड्रॉ कर दिया। इसकी मैं इस पे थोड़ा सा वापस आना चाहूंगा कि यहाँ पे 4 क्यों बचे हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए चले गए, तो बचे कितने, 4 बचे। तो हमें यहाँ पे हमने 4 डॉट्स ड्रॉ कर लिए, ओके। सिमिलरली फॉर दिस राइट साइड ऑल्सो 4 डॉट्स हमने ड्रॉ किए हैं, 1 2 3 4, ओके। सो दीज 4 डॉट्स denotes that 4 electrons are there which are not being shared, and these 4 electrons are shared between both the atoms. So this is how the single bond is formed, okay। हमने सिंगल बॉन्ड भी देखा, डबल बॉन्ड भी देखा, एंड ट्रिपल बॉन्ड भी हमने देखा है, ओके। सो ट्रिपल बॉन्ड इज देयर आल्सो, ठीक है। सो आज के लिए आई थिंक इतना ही काफी रहेगा, अगर कुछ है तो हम देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी फॉर्मेशन ऑफ CH4, ठीक है। तो देखो, एक यूज योर ब्रेन का एक एक्टिविटी है जो हम पढ़ लेते हैं, अगर मेरी कुछ हेल्प हो सकती है आपको तो मैं बताऊंगा, एंड देन यू ट्राई टू परफॉर्म इट एट योर होम, ओके। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन, तो ये आपको अभी बताना पड़ेगा। हाउ मेनी वैलेंस, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन। टोटल एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 17 है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वेरी गुड भैरवी, क्यों, क्योंकि पहली शेल में चले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी शेल में चले जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 and 8 becomes 10, एंड 17 में से 10 गए तो बचे कितने, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, how many electron it will need to achieve its octet, 1 electron is needed। very good Deep, Tanvi, Bhairavi, very good। तो यही आपका क्वेश्चन था। नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर क्लोरीन इज Cl2। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो अभी Cl2 यानी कि ये क्या है, क्लोरीन का एक फॉर्मूला है। तो Cl2 यानी कि 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन, तो उन्हें कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दे नीड टू शेयर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दे नीड टू शेयर, 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा ना, बराबर। तो सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा इन लोगों इनमें, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होगा ना, बराबर, सिंगल बॉन्ड होगा, ओके। सिंगल बॉन्ड विल बी देयर बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन इज बीइंग शेयर्ड बाय बोथ। तो दोनों से 1 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होता है तो टोटल नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स और द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आर 1, दैट्स व्हाई सिंगल बॉन्ड विल बी देयर। तो बाकी के जो 2 क्वेश्चंस हैं
वो आप देख लीजिए, कर लीजिए। ओके, अगर कोई डाउट होता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे। ओके, सो विल गो लिटिल स्लो बिकॉज आई थिंक आपकी जो एग्जाम है वो कुछ अप्रैल मई में रहेगी, सो वी हैव a lot of time, so we'll revise, practice, we'll have lots of tests as well. Okay, so keep studying and revising, and today's your homework will be this दिस क्वेश्चन। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, उसको ड्रॉ करना है लाइन एंड डॉट स्ट्रक्चर में, इस तरह से ड्रॉ करना है और आपको अपलोड करना है। एक ही क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, सो यू विल डू दिस, आई पोस्ट द होमवर्क इन द क्लासरूम एज वेल, सो आई होप एवरीवन विल डू दिस। ओके, तो चलो बाय बाय फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। चलो बाय बाय, लीव द क्लास स्टूडेंट्स, यस यू आर फ्री टू लीव द क्लास। चलो।